I would like to welcome you all to the very first podcast of Ronak Juthawat and Company Secretaries, where we decode corporate laws and simplify compliances. If you ever find company law and corporate laws difficult or confusing, then you're not alone. And that's exactly why we have started these podcasts. And we are starting with very relevant topic, that is Corporate Compliance Facilitation Scheme 2026, which was recently introduced by Ministry of Corporate Affairs through its circular dated 24th February 2026. To make this discussion more insightful, we have CS Kuldeep Minaria sir with us, who will decode this scheme and simplify the scheme for us. Thanks Nikita for having me. So this is a massive update issued by the Ministry of Corporate Affairs. This is for all the companies where their all annual filing is pending, so they can file their annual returns and annual filings in a very reduced additional fees. Further, if they are exploring to apply for the dormant or striking of the, so they can apply. It is a very big relief for the companies which are facing a compliance burden and heavy additional fees. So I am looking for the simplify this to all the companies. So sir, let's start with basics. What exactly is CCFS 2026 and why the government has introduced this scheme? So CCFS 2026 is a one-time MNC scheme issued by the Ministry of Corporate Affairs. ऐसी काफ़ी सारी कंपनीज है जिन्होंने अपनी एनुअल फाइलिंग्स को कंप्लीट नहीं किया, तो वो सारी कंपनीज अपनी रिड्यूस एनुअल फीस पे फाइलिंग कर सकती है. दूसरा, गवर्नमेंट का इट इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल पर्पस टू इंट्रोड्यूस दिस स्कीम, so more and more company can comply, and if they want to discontinue their business or close their business, so they can apply for inactive and striking of, or they can apply for the dormant status. Okay sir, so what all forms are covered under this scheme? So under this scheme, all the annual forms, annual returns are covered, mainly MGT7, AOC4, AOC4 CFS standalone, AOC4 the NBFC companies, FC3, FC4, even company applying for the striking of STK2, and for the dormant status MSC1. Okay sir, what exactly is the time limit for availing the benefit of this scheme? So this scheme starts from the 15th April 2026 and ends on the 15 July 2020. It is a 3-month window. After that, if any company looking for filing their return after 15 July, so they have to pay additional fees of 100 rupees per day. So and if any company is applying for this opportunity, they have to apply in this 3-month window. Whether all companies are benefited from this scheme? Yes, all the companies are covered in this scheme, including public company, private company, Section 8 company, offices companies, provision company. But there is an exception of this. There are vanishing company which are not, their registered office is not traceable, और जिन्होंने अपना स्टैट्यूटरी फाइलिंग नहीं किया है. कंपनी जो कि डिसॉल्व हुई अमालगमेशन के थ्रू, कंपनीज जिसमें अपना STK2 में एप्लीकेशन फाइल कर रखी है स्ट्राइकिंग ऑफ की बिफोर दिस स्टार्ट ऑफ दिस स्कीम, और कंपनी जिन्होंने STK7 में जिनको नोटिस मिल गया है फॉर द स्ट्राइकिंग ऑफ, दिस ऑल कंपनीज आर नॉट कवर इन दिस स्कीम. Okay sir, so tell me what is the biggest benefit under CCFS 2026? तो इस स्कीम का सबसे बिगेस्ट बेनिफिट इस स्कीम का ये है कि यहाँ पे सिग्निफिकेंट एडिशनल फीस का रिडक्शन है. कंपनी मिनिमम कॉस्ट पे अपनी एनुअल फाइलिंग कंप्लीट कर सकती है और कंप्लायंस फुली कंप्लाइंट हो सकती है. तो अभी नॉर्मल फीस पे करो, फुली कंप्लाइंट हो और रिस्क से बचो. इसका अब एक एग्जांपल से अगर अपन समझते हैं, तो अगर किसी कंपनी का AOC4 MGT7 लास्ट 3 ईयर्स से फाइल नहीं हुआ है, तो उसका अगर एडिशनल फीस काउंट करेंगे तो उसका फीस बनेगा कुछ 36,500 पर फॉर्म पर ईयर. अगर इसका टोटल आउटफ्लो देखते हैं तो कंपनी को 3 से 4 लाख की पेनल्टी लगेगी. अगर यही CFS स्कीम में फाइल करेंगे तो उसको केवल एडिशनल फीस का 10% देना है, और 10% के हिसाब से उसका फीस बनता है कुछ 30 से 40 हज़ार. तो CFS के अंदर सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि उसको 10% की फ़ीस के ऊपर वो सारी अपनी एनुअल फाइलिंग कंप्लीट कर सकती है. इससे कंपनी पेनल्टी में काफ़ी लाखों रुपए बचा सकती है, फुल्ली कंप्लाइंट हो सकती है और प्रोसिक्यूशन रिस्क से बच सकती है. That's amazing. ये तो बहुत बड़ा रिलीफ है उन कंपनीज के लिए जिनकी प्रीवियस ईयर की फाइलिंग पेंडिंग है या फिर जो स्ट्राइक ऑफ होना चाहती है. सर, एक क्वेश्चन था कि अगर किसी को बिजनेस डिसकंटिन्यू करना हो तो क्या करना चाहिए उस केस में? तो ये बहुत रिलेवेंट क्वेश्चन है. तो ये स्कीम अप्लाई होती है अगर किसी कंपनी को भी डोरमेंट स्टेटस अप्लाई करना है, तो उसकी फ़ीस होगी हाफ,
नॉर्मल फीस की, और किसी भी कंपनी को स्ट्राइक मूव के लिए जाना है तो उसकी फीस होगी 25% ऑफ द नॉर्मल फीस। बट इसमें एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, उन सारी कंपनीज को अपनी पेंडिंग एनुअल फाइलिंग कंप्लीट करनी होगी जब तक कि उनका लास्ट बिजनेस ट्रांजेक्शन रिटर्न्स में है। और उसमें एक बात उनको ध्यान रखनी है कि ये जो स्कीम है केवल फीस में कंसेशन देती है, आपको जो नॉर्मल प्रोसीजर है वो फॉलो करना पड़ेगा। और जो भी कंपनीज इसमें STK2 MSE 1 में अप्लाई कर रही है उनको कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी उनका स्टैंडर्ड प्रोसीजर है वो उनको प्रोबेबली। Okay, sir. Is there any immunity from penalty or prosecution under the scheme, or the company has to file any specific form under this scheme to avail such immunity? यस, इस स्कीम में सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको इस स्कीम में इम्यूनिटी मिलती है फॉर डिलेड फाइलिंग अंडर सेक्शन 92 और 137 ऑफ द कंपनी एक्ट। बट इसमें एक कंडीशन है, आपको स्कीम में एजुकेटिंग ऑफिसर के नोटिस आने से पहले सारी फाइलिंग कंप्लीट करनी है या नोटिस आया उसके 30 डेज में। और जैसे कि CCPS 2020 में आपको इम्यूनिटी के लिए एक फॉर्म फाइल करना होता था, 2026 में आपको कोई फॉर्म फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो, पेंडिंग कंप्लायंस फॉलो करो, फीस पे करो और आपको ऑटोमेटिकली इम्यूनिटी ग्रांट हो जाएगी। सर, एक कंफ्यूजन था, अगर किसी कंपनी ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रीवियस ईयर के प्रिपेयर ही नहीं किए हैं एंड अप्रूव ही नहीं करा है, देन इन दैट केस कंपनी को क्या करना चाहिए? ये डिपेंड करता है कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। अगर कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रीवियस ईयर के प्रिपेयर्ड हुए, अप्रूव्ड है और मेंबर्स ने उसको अप्रूव कर रखे हैं, बट कंपनी ने एनुअल फाइलिंग नहीं कर रखी, तो वो डायरेक्टली MCA पे फाइलिंग के लिए जा सकती है। बट किसी कंपनी ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर नहीं किए तो फर्स्ट उस कंपनी को उसके रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर में जो प्रोविज़न और जो फॉर्मेट एप्लीकेबल था उसमें अपने फाइनेंशियल्स बनाने हैं और उसके बाद उसको करंट डेट में AGM करा के AGM में उसको अप्रूव कराना है। And sir, what if the company has not held AGM in previous year for adoption of financial statements? अगर कंपनी ने अपनी प्रीवियस ईयर की AGM हेल्ड नहीं करी है तो फर्स्ट कंपनी को करंट डेट पे AGM को हेल्ड करना है, मेंबर्स से उसको अडॉप्ट कराना है फाइनेंशियल्स को। और बट इसमें एक जो एडिशनल फीस कैलकुलेट होगी वो उनकी एक्चुअल ड्यू डेट ऑफ AGM से होगी। तो इसको एग्जांपल से समझते हैं, अगर किसी कंपनी के 2017-18 के फाइनेंशियल्स अप्रूव कराने थे तो उसकी ड्यू डेट बनती है 30 सितंबर 2018 एज पर द लॉ। 6 मंथ्स में आपको AGM कराना होता है, बट उसने AGM वहाँ नहीं कराई और उसने AGM करंट डेट पे करी, तो उसका जो ड्यू डेट ऑफ AGM थी 30 सितंबर 2018, वहाँ से उसका एडिशनल फीस का कैलकुलेशन होगा, नॉट द करंट डेट ऑफ AGM। Okay, so there is no escape in that. यस। Also, क्या ये स्कीम रिसेंट ईयर्स पे भी एप्लीकेबल है? तो ये स्कीम जो भी कंपनीज के एनुअल फाइलिंग टिल द फाइनेंशियल ईयर 2024-25 तक की पेंडिंग है, ये स्कीम वहाँ तक के लिए एप्लीकेबल है। So lastly, what are the key takeaways for professionals and companies? तो कंपनीज के लिए है कि CCPS स्कीम में कंपनी के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो अपनी प्रीवियस जितनी भी कंप्लायंस हिस्ट्री है वो वेरी लो कॉस्ट पे क्लीन कर सकती है। और प्रोफेशनल के लिए ये सबसे पहले उनको अपना रिव्यू करना है क्या उनकी पेंडिंग फाइलिंग्स है, इस विंडो में उसको कंप्लीट करना है। अगर इस विंडो में कंप्लीट नहीं किया तो आफ्टर दैट स्कीम एंड्स एंड द हेवी पेनल्टी विल बी इम्पोज्ड ऑन द कंपनीज। Alright guys, so the conclusion is the companies have 3 months window, that is from 15th April 2026 to 15th July 2026. They get 90% discount on late additional fees and golden opportunity to clear their pending filings and be compliant. But the AGM related issues are to be handled separately as per the law. Sir, thank you so much for simplifying and clearing this scheme in simplest way. माय प्लेजर। बस एक एडवाइस है कंपनीज को कि अभी इग्नोर मत करो, इस CCPS स्कीम का फ़ायदा उठाओ, हेवी पेनल्टी से बचो, कंप्लायंस फ्री हो। Alright guys, see you in next episode. Till then, stay tuned and stay compliant.